Good morning, Bacha Party. How are you all? I hope you are doing well and preparing well for your exam. It will to be held on 28th of January. आज है 4th Jan और हमारा 4th वीडियो. आपने अगर पीछे की 3 वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो देखिए. इस पूरे सेशन में जो हमने टारगेट लिया है 25 डेज 25 वीडियो का, इसमें हम कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 50 MCQs विद देयर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, जिसमें अब तक हमने कर लिया है रिवॉल्ट, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, एंड टुडे वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक इंडियन नेशनल मूवमेंट्स. द इंडियन नेशनल मूवमेंट्स 50 MCQs with detailed explanations. Question number 1. Ahmedabad is located on the bank of, and the answer is साबरमती रिवर. अहमदाबाद जो है वो साबरमती रिवर के किनारे पे बसा हुआ है और स्टेट कैपिटल जो गांधी गुजरात की जो कैपिटल है गांधीनगर, उससे 30 किलोमीटर दूर है, जिसको उसकी ट्विन सिटी भी बोलते हैं. यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और फ्रेम हो गया. विच सिटी इज नॉन एज ट्विन सिटी ऑफ अहमदाबाद इज गांधीनगर. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश वॉज फॉर्म्ड बाय सुभाष चंद्र बोस, and the answer is Indian National Army, also known as Azad Hind Force or Free Indian Army. It was established in 1942 during World War II, named by Netaji Subhash Chandra Bose. Next question. Dash was the first woman president of Congress, and the answer is Annie Besant. Annie Besant was the first woman president of Indian National Congress, which was established in 1885. INC कब establish हुई थी? 1885 में. So she was president during Calcutta session in 1917. Sarojini Naidu was a famous Indian poet and a major freedom fighter, and she became the first Indian woman to be appointed as the president of INC in 1925. Question. Dash was a symbol of Hindu-Muslim unity till 1920. And the answer is Muhammad Ali Jinnah. And Muhammad Ali Jinnah was symbol of Hindu-Muslim unity in pre-independence India. Sarojini Naidu gave them a title Ambassador of Hindu-Muslim Unity. Important. Next question. Khudai Khidmatgars was founded by, and the answer is Khan Abul Ghaffar Khan. अबुल गफ़र खान ने 1929 में खुदाई खिदमतगार मूवमेंट स्टार्ट किया था, जिसको दूसरा नाम है सर्वेंट्स ऑफ गॉड. नेक्स्ट क्वेश्चन. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन, एंड द आंसर इज 1935. जवाहरलाल नेहरू मेंशन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज चार्टर ऑफ स्लेवरी and compares it with a machine with all breakers, no engine. This line is again important. Next question. Sarojini Naidu became Congress president in which year? She became president of INC in Kanpur session in 1925, and she was also given a title of Nightingale of India because of his ultimate contribution in the field of poetry. She was also the first woman to be appointed as governor of an Indian state, और वो state कौन सा था? उत्तर प्रदेश. Next question. Quit India movement took place in which year? And the answer is 1942. Quit India movement लॉन्च किया था महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 में. कहाँ पे? बॉम्बे सेशन में किया था. Next question. Dash persuaded Mahatma Gandhi to allow women to participate in freedom movement, and the answer is Kamala Devi. Kamala Devi Chattopadhyay persuaded Mahatma Gandhi to allow women participation in salt satyagraha. She was widely regarded as the first woman to be arrested in freedom movement. Next question. The religious functionaries of Sikh Gurudwaras are, and the answer is Mahants. And the next question. The Congress supported British in First World War as they were critical of, and the answer is British.
कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया था कि कंट्री ब्रिटिशर्स की हेल्प करेगी वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, और कंडीशन ये रखी थी कि बदले में आपको जैसे ही वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगा आपको इंडिया को डिक्लेयर करना होगा कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी मार्च वॉज लेड बाय डैश इन 1920 एंड द आंसर इज महात्मा गांधी। दांडी मार्च, जिसको सॉल्ट मार्च भी बोलते हैं और दांडी सत्याग्रह भी बोलते हैं, एक नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था जिसको स्टार्ट किया था मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। लोगों ने स्टार्ट करना, दांडी मार्च स्टार्ट हुई थी 12 मार्च 1930 को और ये चली थी 6 अप्रैल 1930 तक। डैश वॉज अ लॉयर एंड फ्रीडम फाइटर फ्रॉम ईस्ट बंगाल। आंसर इज चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से भी जानते हैं, विच मीन्स फ्रेंड ऑफ द कंट्री और नेशन। ये एक फ्रीडम फाइटर थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे और लॉयर भी थे। पॉलिटिकल गुरु थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिस वन इज रियली इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे बन जाता है यहाँ से, हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस? द आंसर इज चित्तरंजन दास। Next question, Gandhiji called off non-cooperation movement because of the violence in, and the answer is चोरी चोरा। महात्मा गांधी ने चोरी चोरा हत्याकांड के बाद अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था और ये इवेंट कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। 5th of Feb 1922 लोगों की भीड़ भड़क गई थी और उन्होंने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था? 22 पुलिसमैन जिंदा जल गए थे। और इस इवेंट के बाद महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था, क्योंकि उनका मोटिव तो क्या था? नॉन वायलेंट मूवमेंट चलाना, और यहाँ तो वायलेंस हो गया था। ये रीज़न था कि उन्होंने अपना जो मूवमेंट था वो वापस ले लिया था। विच मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन 1930? एंड द आंसर इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था मार्च 1930 में विद सॉल्ट सत्याग्रह, और उन्होंने अबॉलिश करवा दिया था टैक्सेस जितने भी इम्पोज थे सॉल्ट के ऊपर, और ये ख़त्म हो गया था मार्च 1931 में विद गांधी इरविन पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन वॉज हेडेड बाय whom? एंड द आंसर इज लॉर्ड साइमन। The Indian Statutory Commission, also known as Simon Commission, was a group of 7 members of Parliament under the chairmanship of Sir John Simon. Simon Commission, Lord Irwin was the Viceroy of India. It was an all 7 white member Indian Statutory Commission, which is popularly known as Simon Commission. और यही एक रीज़न था कि लोगों ने नारे लगाए थे साइमन गो बैक। क्यों रीज़न था कि लोगों ने साइमन कमीशन को एक्सेप्ट नहीं किया था? क्योंकि इसमें जो साइमन कमीशन को एक्सेप्ट ही नहीं किया, रीज़न क्योंकि उसमें 7 मेंबर की ये टीम थी और सातों के सातों कौन थे? सारे ब्रिटिशर्स थे, कोई भी इंडियन पर्सन उसमें नहीं था। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आते हैं, जैसे कई बार ये पूछ लेता है कि साइमन कमीशन कितने मेंबर्स की कमीशन में कितने मेंबर थे? साइमन कमीशन में कितने मेंबर थे? तो आंसर इज 7। दूसरा, साइमन कमीशन के टाइम वॉइसरॉय कौन था? लॉर्ड इरविन। Congress fought for Purna Swaraj under the whose leadership in 1930? And the answer is Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru declared Purna Swaraj on 19 December 1929 in Lahore session. And a public declaration was made on 26th January 1930. Next question, Gandhiji has established dash in South Africa. And the answer is नटल कांग्रेस। 1895 में महात्मा गांधी ने बाकी इंडियंस के साथ मिलकर नटल कांग्रेस को स्टार्ट किया था साउथ अफ्रीका में। किस लिए? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को फाइट करने के लिए। फॉर्मर साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला इज नॉन एज द गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का गांधी किसको बोलते हैं? नेल्सन मंडेला को। Forest Satyagraha was staged by peasants and tribal in which Andhra district? And the answer is Guntur. The Palnad Forest Satyagraha was an important episode of the Indian freedom struggle which took place in Guntur district of Andhra Pradesh. This Satyagraha was took place in 1921. Peasants of this place had to pay high tax for permission to graze their cattle in forest. When the crop failed,
That year, they decided to send their cattle into the forest without paying the fee and suffer the penalties. Next question. Gandhiji led mill worker strike in Ahmedabad in which year? And the answer is 1980. On March 15, 1918, Mahatma Gandhi launched his first hunger strike after returning from South Africa, that is Ahmedabad mill strike. मोमेंट से जो महात्मा गांधी ने आते ही स्टार्ट किए थी इंडिया में 1950 में महात्मा गांधी रिटर्न होके आए थे अफ्रीका से इंडिया में, और आने के बाद कुछ टाइम उन्होंने पूरे इंडिया का सर्वे किया, घूमे, वो लोगों से बात की, सिचुएशन देखी, और उसके बाद उन्होंने अपने मूवमेंट स्टार्ट कर दिए थे. द फर्स्ट मूवमेंट वॉज चंपारण मूवमेंट इन 1917. नेक्स्ट खेड़ा मूवमेंट इन 1918. इसी के साथ अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918, खिलाफत मूवमेंट 1919, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट 1920, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और सॉल्ट सत्याग्रह 1930. ये सारे इंपॉर्टेंट मूवमेंट हैं जो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किए थे. Question. Defense expenditure of British government increased in 1919 after which event? And the answer is First World War. Period First World War का था कब से कब तक? 1914 to 1918. और ये हुई किन के बीच में थी? सेंट्रल पावर्स एंड द अलाइज के बीच में. अब सेंट्रल पावर में कौन कौन सी कंट्री थी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड टर्की. और अलाइज में कौन कौन था? फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, रशिया, इटली, जापान. और 1917 में कौन आ गया था? यूनाइटेड स्टेट्स. बंगाल फेमाइन हुई थी आपकी 1943 में, भूखमरी फैल गई थी, और इसकी वजह से अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलियन पीपल जो हैं वो भूख की वजह से, डिसीजेस की वजह से मर गए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Where All India Muslim League was formed in 1906? And the answer is Dhaka. The league was established on 30th December 1906 under the chairmanship of Nawab Salimullah Khan of Dhaka, which is now in Bangladesh, the capital of Bangladesh. Next question. Who was one of the leaders of the Khilafat movement? And the answer is मोहम्मद अली. स्टार्ट किया था मोहम्मद अली एंड शौकत अली, जिनको अली ब्रदर्स भी बोलते हैं, इन 1919 और 1924 तक ये चला था. इस मोमेंट का एम था कि ये मुस्लिम कम्युनिटी को जो है यूनाइट करेंगे, सारे मुस्लिम्स को एक यूनिटी में लेके आएंगे. क्वेश्चन. हु रिटर्न हिज नाइटहुड आफ्टर लर्निंग अबाउट जलियांवाला मैसेकर? एंड द आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर. जब उनको जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पता चला, जो कब हुआ था? 1919 में. रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अवॉर्डेड विद नाइटहुड फॉर द सर्विसेज टू लिटरेचर बाय किंग जॉर्ज V इन 1915, और 1913 में उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था लिटरेचर के लिए. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फर्स्ट नोबेल प्राइज़ कब मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को? 1930 में लिटरेचर में. उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन कि रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड अवार्ड दिया किसने था? किंग जॉर्ज V 1915 में, नोबेल प्राइज़ मिलने के 2 साल के बाद. नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट स्लोगन वॉज गिवन बाय? फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, ये किसका स्लोगन है? एंड द आंसर इज बाल गंगाधर तिलक. बाल गंगाधर तिलक ने स्लोगन दिया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट. स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा. ही स्टार्टेड 2 न्यूज़पेपर, one in Marathi language. The name of newspaper is Kesari and another is Maratha, which is in English. Very important and confusing as well. केसरी न्यूज़पेपर किया था मराठी लैंग्वेज में, और मराठा न्यूज़पेपर किया था इंग्लिश लैंग्वेज में. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who was the Viceroy of India when partition of Bengal was announced? The answer is Lord Curzon. बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था कब? 1905 में. उस टाइम वॉइसरॉय थे कर्जन. वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रिटिशर्स ने क्या बोला था रीज़न कि क्यों वो बंगाल को अलग अलग कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न दिए थे कि बहुत बड़ा प्रोविंस है और बहुत अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हो नहीं पा रहा है, तो इसको अलग अलग कर दो सो दैट छोटे टुकड़े हो जाएंगे तो हम ईजिली उसको संभाल पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. द आर्म्स एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर?
एंड द आंसर इज 1878। आर्म्स एक्ट पास हुआ था 1878 और किसने किया था? लिटन ने। इस एक्ट में क्या था? कोई भी इंडियन को अलाउ नहीं था कि वो मैन्युफैक्चर करे, सेल करे या फिर इवन अपने पास कोई भी वेपन रखे विदाउट अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वर्नाकुलर एक्ट पास किया था सेम ईयर 1878 में, और ये भी किसने पास किया था? वॉइस रॉय लिटन ने। और इसकी क्या कंडीशन थी? इस एक्ट में ये था कि कोई भी न्यूज़पेपर अथॉरिटी, कोई भी प्रेस ब्रिटिशर्स के बारे में कुछ भी गलत नहीं लिख सकती, कोई भी उनकी पॉलिसीज के बारे में नेगेटिव पॉइंट अपने न्यूज़पेपर में नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द बुक दैट वाज रिटन बाय दादा भाई नौरोजी। एंड द आंसर इज पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने 2 बुक लिखी थी, और दोनों बुक किस पर्पज से लिखी थी? ये बताने के लिए कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स बड़ी चालाकी से इंडिया की वेल्थ यहाँ से निकाल के लेके जा रहे हैं। और वो बुक कौन सी थी? फर्स्ट बुक इज पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एंड द सेकेंड बुक इज पॉवर्टी ऑफ इंडिया। ये 2 बुक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। 1883 में दादा भाई नौरोजी ने एक न्यूज़पेपर भी पब्लिश किया था जिसका नाम था द वॉइस ऑफ इंडिया, और ये कहाँ से किया था? बॉम्बे से किया था। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, न्यूज़पेपर पब्लिश बाय दादा भाई नौरोजी। अब बाकी जो ऑप्शंस थे उनको भी हम एक बार स्टडी कर लेते हैं। स्त्री पुरुष तुलना, ये भी एक बुक है जो किसने लिखी थी? ताराबाई शिंदे। बुक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये बुक है, ये ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी जी की। एंड द नेक्स्ट बुक जो ज्योतिबा फुले ने लिखी थी 1873 में, वो थी गुलामगिरी, जिसका मतलब था स्लेवरी। आई होप ये सब आपको याद रह जाएंगे। नहीं याद हो रहे हैं तो एक बार और पढ़ लो कि चारों के चारों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय वॉज एन एक्टिव मेंबर ऑफ विच समाज। एंड द आंसर इज आर्य समाज। लाला लाजपत राय को लायन ऑफ पंजाब भी बोला जाता है। आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? हु फाउंडेड आर्य समाज? स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में। आईएनसी हुआ था 1885 में स्टैब्लिश। आईएनसी से 10 साल पहले आर्य समाज स्टैब्लिश हो गया था बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। ये बस ट्रिक है याद करने की कि जब भी आप सोशल स्टडीज़ पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो कोई भी ईयर आता है तो उसको कनेक्ट करते चलिए। जब आप बार बार कनेक्ट करेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या था? ये विडो रीमैरिज को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती थी, और एजुकेशन ऑफ गर्ल चिल्ड्रन, जो छोटी बच्चियाँ होती थी उनकी एजुकेशन के लिए, और विडोज़ की दोबारा शादी करने के लिए ये लोग बहुत ज़्यादा वॉइस रेज करते थे इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट इज प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज किसने स्टैब्लिश किया? आत्माराम पांडुरंग 1867 में। और इनका क्या मोटिव था? ये बिलीव करते थे वन गॉड एंड वन वर्शिप ऑफ ओनली वन गॉड, कि एक ही भगवान है और एक ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस चीज़ में ये बिलीव रखते थे। राजा राम मोहन रॉय की अगर बात करें तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, और इन्होंने स्टैब्लिश किया था ब्रह्म समाज इन 1828 में। इन्हीं की एफर्ट्स की वजह से सती सिस्टम अबॉलिश हुआ था। वेद समाज स्टैब्लिश बाय केशव चंद्र सेन एंड के सिद्धारुलु नायडू। पॉइंट्स आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम मूवमेंट टुक प्लेस इन विच प्लेस? एंड द आंसर इज डेल्टाइक आंध्रा। वंदे मातरम मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ था 1907 में आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रगल फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल केम टू बी नोन एज? एंड द आंसर इज स्वदेशी मूवमेंट। पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट जो मूवमेंट स्टार्ट किया था उसका नाम था स्वदेशी मूवमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? एंड आंसर इज बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी आईएनसी के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, और ये कब बने थे? 1887 में। और आईएनसी कब बनी थी? 1885 में। वोमेश चंद्र बनर्जी, ये इसको शॉर्ट में बोल देते हैं WC बनर्जी, ये थे फर्स्ट प्रेसिडेंट आईएनसी के।
नैन एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी आईएनसी की, और ये कब बनी थी? 1917 में कलकत्ता सेशन में। जॉर्ज योले ये फर्स्ट इंग्लिश मैन थे जो कि आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे, और ये प्रेसिडेंट बने थे 1888 के इलाहाबाद सेशन में, और ओवरऑल ये आईएनसी के 4th नंबर के प्रेसिडेंट थे। सरोजनी नायडू सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट थी और फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी आईएनसी की। यहाँ से भी ये आपकी कंप्लीट स्लाइड जो है अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी फर्स्ट पर्सन होता है वो तो वैसे ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब आप सोचेंगे आप तो हर स्लाइड में इंपॉर्टेंट मार्क कर रहे हो, ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। आपका जब भी एग्ज़ाम होगा ये वाले चैप्टर की वेटेज जो है हिस्ट्री के चैप्टर्स में से सबसे ज़्यादा है। दिस वन एंड द इंडियन नेशनल फ्रीडम फाइटर, ये दोनों चैप्टर्स की वेटेज सबसे ज़्यादा होती है, तो ये 2 चैप्टर्स तो आपको घोट के पी जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अलाउड फॉर ट्रायल ऑफ यूरोपियन बाय इंडियंस? एंड द आंसर इज इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल जो है वो पास हुआ था 1883 में। किसने किया था? रिपन ने। इल्बर्ट बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन 1883, और इसके अकॉर्डिंग जो इंडियन जजेस थे वो भी यूरोपियंस के केस लड़ सकते थे, बट ब्रिटिशर्स इनके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो गए थे, और कुछ टाइम बाद ये एक्ट जो है वापस ले लिया गया था। वॉज द इंडियन बिजनेसमैन एंड पब्लिसिस्ट बेस्ड इन लंडन? द आंसर इज दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी एक बिजनेसमैन थे और पब्लिसिस्ट थे जो कि लंदन में सेटल थे, और ये कुछ टाइम के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे थे। ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने स्वराज डिमांड की थी कलकत्ता सेशन में 1906। अब आप कन्फ्यूज़ मत होना कि थोड़ी देर पहले भी हमने स्वराज का एक क्वेश्चन किया था, वो था ईयर 1926 कि पूर्ण स्वराज किसने डिक्लेयर करा था? पूर्ण स्वराज ये था लाहौर सेशन में 1929, और इसको किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दादा भाई नौरोजी इज ऑल्सो नोन एज इंडियन ग्लैडस्टोन एंड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? एंड द आंसर इज सी राजा गोपालचारी। लॉर्ड माउंटबेटन फर्स्ट गवर्नर जनरल थे फ्री इंडिया के, और सी राजा गोपालचारी फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे फ्री इंडिया के। दोनों क्वेश्चंस में फ़र्क है। राजा गोपालचारी को पॉपुलरली राजा जी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग उर्दू पोएट्स वॉज इन्वाइटेड टू द सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? एंड द आंसर इज मोहम्मद इकबाल। ऐसे कौन पर्सन थे जिन्होंने तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी? वो पर्सन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर एंड तेज बहादुर सप्रू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। स्वराज एज अ नेशनल डिमांड वॉज फर्स्ट मेड बाय हुम? जस्ट अभी किया हमने क्वेश्चन, एंड द आंसर इज दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज को डिमांड किया था कलकत्ता सेशन 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया इन विच ईयर? द आंसर इज 1911। न्यू दिल्ली को कैपिटल बनाया था इंडिया का 1911 में, और ये करा किसने था? जॉर्ज 5th ने। उससे पहले कलकत्ता इंडिया की कैपिटल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रियल पर्पस ऑफ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909? All of the above. To confuse the moderate nationalist, to divide the nationalist tanks, to check the growth of unity among Indians. So answer will be all of these. Morley Minto reforms is also known as the Indian Council Act 1909. Next question, which of the following marked the establishment of communal election in India? The answer is the Indian Council Act. इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, फॉर्मुलेट किया था जॉन मॉर्ले एंड लॉर्ड मिंटो। इन्हीं के नाम से बोल दिया गया इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ये क्वेश्चन भी कई बार डायरेक्ट बन जाता है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स? दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग?
And the answer is anti-Bengal partition agitation. गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय इंपॉर्टेंट पीपल थे किसके? स्वदेशी मूवमेंट के. So what was the symbol of Swadeshi movement? Charkha. Next question. Which organization was started at the Haridwar Kumbh Mela in 1915? And the answer is Hindu Mahasabha. Next question. Which among the following is an important pact in the history of the Indian freedom struggle that unifies the Congress and Muslim League in the country? And the answer is Lucknow Pact. लखनऊ पैक्ट जो 1916 में हुआ था, इसमें INC और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक हो गए थे और उस टाइम AC मजूमदार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु लेड द बारडोली सत्याग्रह मूवमेंट? एंड द आंसर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल. सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली सत्याग्रह को लीड किया था. मूवमेंट के सक्सेसफुल होने के बाद ही बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट. इज वन ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेस इन द कंट्री. द सॉल्ट मार्च वॉज स्टार्टेड फ्रॉम बारडोली एंड बिकेम फेमस एज बारडोली सत्याग्रह. बारडोली सूरत से 34 किलोमीटर दूर है. क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द की ऑर्गेनाइजर ऑफ गदर रिवॉल्यूशन? And the answer is रास बिहारी बोस. पार्टी पहले द पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन के नाम से जानी जाती थी, जो बनी थी 1930 में USA में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? युगांतर आश्रम इन फ्रांसिस्को. गदर पार्टी को बनाया किसने था? लाला हरदयाल ने. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज देशबंधु? And the answer is C.R. Das, Chittaranjan Das. Next question. Who among the following was known as Punjab Kesari? And the answer is Lala Lajpat Rai. Lala Lajpat Rai पंजाब केसरी के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसका लायन ऑफ पंजाब, शेर पंजाब इन पंजाबी. Next question. Mahatma Gandhi returned an award during the non-cooperation movement as a mark of protest. The award was द आंसर इज केसरे हिंद. 1920 में महात्मा गांधी ने अपना केसरे हिंद का अवार्ड वापस दे दिया था ब्रिटिश एम्पायर को, और इसका एक रीज़न क्या था? जलियांवाला बाग मैसेकर, जहाँ उन्होंने बेकसूर लोगों को मार दिया था. जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ कहाँ था? अमृतसर में. और कब? 13 अप्रैल 1919 इन अमृतसर. 13 अप्रैल 1919. वेरी इंपॉर्टेंट. Next question. Who was the founder of Gadar party? And the answer is Lala Hardayal. Next question. Who among the following founded Prarthana Samaj in Bombay? And the answer is Atma Pandurang. आत्मा पांडुरंग ने प्रार्थना समाज स्टैब्लिश किया था बॉम्बे में इन 1867. Who wrote Annihilation of Caste? एंड द आंसर इज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. के हो जाते हैं हमारे टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. कुछ सजेशंस अगर आप देना चाहते हैं, यू आर फ्री टू गिव योर सजेशन इन कमेंट बॉक्स. यू स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड. PDF आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम पे, और उसका लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में.